Hello and welcome. My name is Dr. Madan Kataria. I'm a medical doctor and I'm from Bangalore, India. You must be wondering why I'm laughing. Actually, I'm laughing for no reason at all. It's called laughter yoga. Before you do laughter yoga with me, just have a look at this video clip. There is a new exercise craze that is sweeping the nation, and you can take part right here in the metro area. What's so funny that has grown adults rolling on the floor? What began with 5 people in a Mumbai park in 1995 has spread to more than 5,000 laughter clubs in 50 countries. Brixton Town Hall, they explore relaxation through the use of laughter. BBC London News. We heard about an unusual new exercise that promises to make people happier. Did laughing yoga do it for you? So it stress lifted from my soul because I felt so much better. I'm struck by how laughter connects you with people. Before you laugh with me, you must understand two things about laughter. One, scientific studies show that our body cannot differentiate between real laughter and fake laughter. You will get the same benefits either way. Second, to get the scientifically proven benefits of laughter, you must laugh at least for 10 to 15 minutes, while natural laughter, which comes in our real life, hardly lasts for a few seconds here and there. So we need to do laughter as an exercise to get the benefits. Now we are ready to laugh. May I request all of you to please stand, and we will go through different laughter exercises. So just warm it up and shake your hands up and down, loosen up, and just say ha 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 ha. So first step is clapping and chanting ho ho ha ha. So we clap ho ho ha 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 ho ho ha 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 ho ho ha ha ha. Come on, ho ho ha 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 ho ho ha ha ha. Yay! Let's do it once again. Ho ho ha 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 ho ho ha 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 ho ho ha ha ha. Yay! So the next step is breathing. Laughter is like an exhalation. When you laugh, you get rid of carbon dioxide, and when you take a long deep breath, you get more oxygen. So oxygen is the food for the brain and for the body. So put your hands out like this, everybody. So take a long deep breath in. Inhale, hold your breath and exhale, say ah. Now I would ask you to take a long deep breath in and hold it, hold it, hold it, and while exhaling, we laugh it out. Are you ready? Stretch your arms, take a long deep breath, hold it, hold it, hold it, and laugh it out. Once again, take a long deep breath in, hold it, hold it, hold it. Very good, very good. So this is what our next exercise is. It's called childlike cheers. So it goes like very good, yay. Let's do it again. Very good, yay. Our next exercise is handshake laughter. Remember, when you laugh with someone and look into the eyes, it's infectious, it's contagious. So let's do handshake laughter. Please shake hand with your neighbor on the right, on the left, look into the eyes and just laugh.
Very good. Very good. Yay! Our next exercise is my favorite. It's called milkshake laughter. So hold two imaginary glasses of milk. We're going to pour one into each other and say eh, 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 and then let's do it together. Hold your glasses. Eh, eh, eh. And if you don't like milk and you are lactose intolerant, so you can mix it and throw it away. Are you ready? Eh, eh, eh. Our next exercise is credit card bill laughter. So put your palm up like this and look at it. Imagine this is your credit card bill. So have a look at it and show it to your neighbors and laugh. Very good, very good. Yay! Our next exercise is just laugh. Why you're laughing? I don't know. I'm just laughing. So look at your neighbors and tell them, I don't know why I'm laughing. 1, 2, 3, go. Let's do argument laughter. If you want to fight, fight laughing like this. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Very good, very good. Yay! Our next exercise is Wi-Fi laughter. Wi-Fi, when you get the signal, you start laughing. Ready? Go. Laughter is very good for your mind. It cleans your mind. So we do mental floss laughter. You know, dental floss, you clean your teeth. But how to clean your mind? You laugh it out. Take a little longer thread and let's clean our mind. The last exercise I want you to try is called 1 minute laughter challenge. Now you need to laugh for 60 seconds continuously. It's not easy, but you can do it. This exercise you can try with your family, with your children, with your friends. So you can try with several people called 1 minute laughter. So are you ready for that? Let's start. 1 minute. Come on. Keep laughing. Come on. Well done. Very good, very good. Yay! Thank you very much.
डीप ब्रीथ। जब पियानो की आवाज आ रही है तो डीप ब्रीथ। Are you ready for the next one? 1, 2, 3, 4.
Come on, दिल खोल के. Enjoy it or not? दिल खोल के हंसना सीखें, दिल खोल के. नाच लो ते हंस लो. और लाइफ मिली है तेरी तुझको, हंस हंस के तू जी ले इसको. हंसना सेहत फिट बनावे, टेंशन वंशन दूर भगावे. ले लेती हैं चिंताएं सब परमानेंट आराम. आके कर ले हमरे संग तू एक छोटा सा काम. लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस. लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस. नाच लो ते हंस लो. अरे हंसने में शर्माना कैसा, हंसने का नहीं लगता पैसा. खुल खुल के तू हंस ले प्यारे, पल पल के तू ले नजारे. सजा ले अपने सर के ऊपर हंसने का तू ताज. बादशाह बन जा हंसने का खुद ही कर ऐलान. लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस. लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस. नाच लो ते हंस लो. और गुस्सा दूर भगाए हंसना, मूड को वेल बनाए हंसना. चमत्कार हंसने से होते, दुश्मन गले लगाए हंसना. हंसने और हंसाने का तू कर दुनिया को दान. हंस हंस के आएगा तुझको दुनिया भर का ज्ञान. आप डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस. लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस. नाच लो ते हंस लो. अरे हंसने का इतिहास बनाना, जो न हंसे उसको भी हंसाना. हंसना है दिल खोल के हंस ले, ढूंढना का है कोई बहाना. सुमन सने जा जी ने कह दी पल्ले बांध ले गांठ. हंस हंस के आएगा तेरी लाइफ में प्रकाश. आप डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस. लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस कर ले, लाफ विद डांस. नाच लो ते हंस लो. सीधे बैठ करके लंबे गहरे श्वास भरेंगे
और बाहर छोड़ेंगे। लगभग 2-2.5 सेकंड में श्वास अंदर लेना और 2-2.5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना, इसका नाम है भस्त्रिका। क्या नाम है इसका, बोलिए? भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर में अतिरिक्त ऑक्सीजन का हम आदान करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में लगभग 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। डीप ब्रीदिंग में 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं और यह ऑक्सीजन फेफड़ों में जाकर के रक्त कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित होकर के हृदय में, हृदय से आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में और कैपिलरीज से बॉडी के एक एक सेल से लेके एक एक टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरे हमारी एग्जिस्टेंस में, पूरे अस्तित्व में यह प्राण तत्व सबल होकर के एक एक शरीर की कोशिका को ऊर्जा देता है। ऐसे लंबा गहरा श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं। ब्रेन सेल से लेकर के आई सेल्स हो, हमारे कानों की कोशिकाएं हो, स्किन सेल्स हो, ब्लड सेल्स, बोन मेरो की सेल्स, बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को रिक्वायर्ड है प्योर ऑक्सीजन। जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी, उनको धीरे धीरे करना है। जो यंगस्टर्स हैं वैसे और पूरी तरह से जवान हैं, कोई रोग नहीं है शरीर में, बलवान है। If you are completely healthy or fit, energetic, so you can do this forcefully like this. देखो, आप जवान हैं तो आप ये 100 बार से लेके 500 बार कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं? 100 बार से लेके। तो पहला फिटनेस चैलेंज तो आपके लिए है कि आप कम से कम रोज 100 बार कर लेना। कितनी बार कर लेना रोज? और 100 बार ये मात्र 1 मिनट में हो जाता है, ज्यादा वक्त लगता। लोग कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, तो मैंने कहा भैया कम वक्त 1 मिनट तो है, कम वक्त बताते हैं। हाँ? 1 मिनट ऐसे कर लेना, पूरी ऊर्जा से भर जाओगे और सबको तो मिलेगी शक्ति। मैं जवानों के लिए खास बोल रहा हूं, आपको मिलेगी इससे अच्छी मति, शक्ति तो मिलेगी। ब्रेन सेल्स को जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपकी मेमोरी शार्प होगी। इसलिए मैं कहता हूँ योग से मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आयु के लेवल बढ़ता है। हर एक के पास उतना ही दिमाग है जितना दिमाग आइंस्टीन के पास था, न्यूटन के पास था। हर एक के पास उतना ही दिमाग है जितना सुभाष चंद्र बसु के पास दिमाग था, जितना दिमाग गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि के पास था। आज भी पॉलिटिकल फील्ड में जितना दिमाग मोदी के पास में, उतना ही दिमाग आप सबके पास में। कोई दिमाग की कमी नहीं है, उसको ठीक से यूटिलाइज कर लें, बस इस चीज की कमी है। जिस दिन तुम अपनी मस्तिष्क की ताकत को, अपने शरीर, इंद्रियों, मन, आत्मा की ताकत का पूरा इस्तेमाल कर लोगे, तुम मानव नहीं रह जाओगे, फिर महामानव बन जाओगे। तुम पुरुष नहीं, महापुरुष। तुम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाओगे। ये यात्रा है योग की। इसलिए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार
ये 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट सबको करना है। 1 से कितनी मिनट? कम से कम ये 5 मिनट। तो 1 मिनट का ये भस्त्रिका का चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो? तो चलो 1 मिनट मेरे साथ करके दिखाना। 100 बार होगा 1 मिनट में। कितनी बार? लेकिन ये चैलेंज यंगस्टर्स के लिए है, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्निया, बैक एक, वीकनेस है, उनके लिए नहीं है। वो तो धीरे धीरे करना, वो ऐसे करना। दिस इज स्पीड फॉर ऑल। ये सब के लिए है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये वाली। लेकिन इसमें पूरी मुंडी मत हिलाना, कुछ पूरे हिलने लगते हैं। नो, ये ऐसे नोटी की तरह मत करना। नोटंकी मत कर। देखो सुनो, 100 बार। ए जवानों, तुम्हें पता लगेगा मन कैसे काबू किया जाता है। नहीं तो बहुत से बच्चे कहते हैं स्वामी जी हम पढ़ना तो चाहते हैं, मन को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और आपके लिए एक खास बात ये कह रहा हूं कि आप 1 मिनट भी ये कर लेंगे तो आप अपने मन को कंसंट्रेट कर सकेंगे, अपनी मेमोरी को, अपने IQ लेवल को आप बढ़ा सकेंगे। 1 मिनट में, खाली 1 मिनट में आप देखना आपका मन पूरा शांत हो जाएगा। फिर आप जो चीज आपको याद करने में 2 घंटे लग जाते हैं, उस चीज को आप 10-20 मिनट में याद कर सकेंगे। और ये सब मैं करके बैठा हूं। मैंने भी अष्टाध्यायी पढ़ी है, महाभाष्य पढ़ा है, उसके बाद वेद शास्त्र पढ़ने के बाद मेडिकल साइंस को भी पढ़ा है मैंने। फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर के पॉलिटिक्स से लेकर के इकोनॉमिक्स से लेकर के बहुत कुछ पढ़ा है। अनपढ़ बाबा नहीं हूं, पढ़ा लिखा सन्यासी हो। और जहां भी रहा हूं नंबर 1 रहा हूं। गुरुकुल में रहा, पढ़ाई में की तो वहां पर पढ़ाई में नंबर 1 रहा हूं। फिर योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का काम शुरू किया तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को उखाड़ा, उनका शीर्षासन कराया। थोड़े दिनों में मोक्ष हो जाएगा। जो योगी करेगा वो हर फील्ड में रहेगा नंबर। हेल्थ में, एजुकेशन में, नॉलेज में, डिसिप्लिन में, कैरेक्टर में हमें रहना है नंबर। और जब हम नंबर होंगे तो भारत नंबर। जब हम महान होंगे तो भारत। ये है एक प्रोसेस कि कैसे मेरा भारत महान बनेगा, कैसे मैं महान बनूंगा। तो चलो 1 मिनट का चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया तो 1 मिनट करके देखेंगे। जवान तेजी से करेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हो आराम आराम से कर लेना, होड़ मत करना। तो चलिए 1 मिनट 100 बार करेंगे। 1 मिनट में 100 बार हो जाएगा। एक मिनट हो गया। आप सबने भी 1 मिनट किया ना पूरा, तो 1 मिनट में पसीना आ जाता है और मन एकदम शांत हो जाता है। लोग कहते हैं बाबा ये मन काबू में नहीं रहता है। जैसे हाथी को अंकुश लगा के कंट्रोल करते हैं, ऊंट को नकेल से कंट्रोल करते हैं, तो ये तुम्हारे दिमाग की नकेल है प्राण। प्राण को नियंत्रित करना आ गया तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। क्या नाम है इसका, बोलिए फिर से। व्यायाम के ही क्रम में अगला व्यायाम है योगिक जॉगिंग का व्यायाम। अब व्यायाम के संदर्भ में
आपको विशेष बातों का संकेत कर रहा हूँ। व्यायाम के संदर्भ में हमारे प्राचीन, ये पहला अभ्यास है। अभ्यास करते करते मैं ये संकेत करूँगा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, प्रैक्टिस भी साथ साथ कराता हूँ। खाली थ्योरिकल क्लास नहीं है, तो थ्योरी तो साथ साथ बता ही रहे। लंबे लंबे श्वास, मैंने कहा सामान्य श्वासों के संदर्भ में नियम है लंबे लंबे श्वास लेते रहे। जब विशेष करके शरीर की स्थिति सहज होती है तो लंबे लंबे श्वास, शरीर की गति सीधी सहज तो श्वासों की गति भी सहज। व्यायाम के संदर्भ में हमारे प्राचीन ऋषियों ने भी शोध किया और आधुनिक शोधकर्ता भी इसमें अलग अलग प्रकार से शोध कर रहे हैं। सबका भी ये मानना है, अभी भी जो नया नया रिसर्च हुआ कि कम से कम सप्ताह में 600 मिनट व्यायाम करना सबके लिए अनिवार्य है। उसमें भी 2 विभाजन कर दिए। जो बहुत तीव्र गति से व्यायाम करते हैं उनके लिए लगभग पौना घंटा, और जो धीरे धीरे करते हैं उनके लिए करीब 1.5 घंटा। माने अब ये तो कभी 20 मिनट बोलते हैं, कभी आधा घंटा बोलते हैं, कभी 1 घंटा बोलते हैं, कभी 1.5 घंटा बोलते हैं, तो अलग अलग प्रकार के शोध होते रहते हैं। लेकिन इसमें मूल बात यह है कि लगभग 1 घंटे का योगाभ्यास 24 घंटे में होना चाहिए, जिसमें एक संतुलित प्रैक्टिस हो, जिसमें व्यायाम भी हो, जिसमें आसन भी हो, प्राणायाम और ध्यान हो। क्योंकि प्राणायाम ध्यान के ऊपर तो उनका भी ध्यान गया ही नहीं है। दूसरा अभ्यास, अब जो बलवान है उसको ऐसे नहीं करना होगा, उसको ऐसे करना होगा। जो जवान है उनको ऐसे गति पूर्वक करना होगा। तो व्यायाम के क्या लाभ हैं? एक तो ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, वैसे आधुनिक वैज्ञानिकों का जो निष्कर्ष है उसको मैं कभी भी पूरा नहीं मानता हूं, वो फिर बढ़ाते रहते हैं जैसे जैसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। व्यायाम का बड़ा निष्कर्ष है, कम से कम जो नियमित व्यायाम करेंगे औसत उनकी 25% आयु ज्यादा होती है। जो व्यायाम नहीं करेगा लगभग 75 साल में पूरा हो जाएगा, और जो व्यायाम करेगा लगभग 100 साल जिएगा। ये दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरा ऐसे, ये सबके लिए ऐसे, ये सब कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे तो सब कर सकेंगे। जो बलवान है थोड़ा ऐसे तेजी से करें, और ज्यादा बलवान है तो ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे। यह हमारे सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो व्यायाम करेंगे, उनकी औसत आयु 25%। बोलो, सामान्य जो व्यायाम नहीं करने वाले लोग हैं वो 75 साल में पूरे हो जाते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, कोई ना कोई रोग होता है और शरीर की मृत्यु हो जाती है। मरना तो सबको है, लेकिन हम पूर्ण आयु प्राप्त करके क्यों ना जाएं संसार से। देखो, एक बड़ी बात है, जब आप विद्यादि अभ्यास करके जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभा रहे होते हैं, पारिवारिक भूमिका, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एक बड़ी भूमिका निभा रहे होते हैं, उस समय यदि आपको 20-25 साल का वक्त मिल जाए तो ये जीवन का सर्वोपरि काल होता है। ये गोल्डन पीरियड होता है, ये स्वर्णिम कालखंड होता है आपके जीवन का। ये आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है कि आप 25 साल तो मैंने बहुत अधिक कहे, 10 साल भी किसी भी व्यक्ति को जो पीक टाइम होता है लाइफ का, ये जो 50 साल के आसपास का समय होता है, 40 से 50 या 40 से 60 के बीच का, 10 साल भी कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़ी भूमिका में लग जाता है तो वो जीवन और जगत में बहुत बड़ी अपनी एक भूमिका निभा सकता है। चाहे वो आंतरिक साधना का विषय हो या वो सेवा का विषय हो, सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक जो भी सेवा है, माने कि इतनी बड़ी भूमिका है व्यायाम मात्र की कि आप लगभग 25 वर्ष का एक बहुत ऊर्जावान समय अपनी जिंदगी में बढ़ा लेते हैं। ये कितनी बड़ी भूमिका है। माने आप 25 से लेकर के 75 साल, 25 साल बढ़ाने का मतलब हो गया 25 तक तो आप अपने आप को तैयार करते हैं।
25 से लेकर के 75 साल जो योगाभ्यास करता है, विशेष करके यौगिक व्यायाम करता है, उसको कम से कम 50 साल तक उसको जीवन में विशेष भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। ये योग की भूमिका है, ये व्यायाम की भूमिका। और ये शोध द्वारा भी, आधुनिक शोधों के द्वारा भी, प्राचीन ऋषियों ने जो जीवन के संदर्भ में, जीवन पद्धति के संदर्भ में, लाइफस्टाइल के बारे में जो उन्होंने कहा, क्योंकि हमारी भारतीय जीवन पद्धति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता है, जिसको हम वैदिक जीवन कहते हैं, जिसको आजकल हिंदुत्व शब्द से भी कहा जाने लगा। 25 से 75 साल आपको, इतना 50 वर्ष आपको मिलता है। नहीं तो मैंने देखा लोग 50 साल में ढीले ढाले हो जाते हैं, पेट मोटे हो जाते हैं, हाथ पैर बेकाबू हो जाते हैं, तन पर नियंत्रण रही, मन पर नियंत्रण नहीं, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने, कंधों के समानांतर, दोनों हाथ हथेली नीचे की ओर, विधि पूर्वक कर रहे हैं। तो एक तो मैंने कहा आपको लगभग 50 वर्ष का कालखंड मिलता है जीवन में एक विशेष भूमिका निभाने के लिए। जीवन को अलग अलग शब्द देते हैं, बोले जीवन तो एक अनुष्ठान है, जीवन एक जंग है, एक युद्ध है, जीवन एक नाटक है। इस नाट्य मंच पर आपको एक विशेष भूमिका निभानी होती है। जो भी शब्द कहे, जिसको जो समझ में आए, जो पूरा बैठ पाए वो पूरा बैठ जाए, पूरा उठ जाए, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा बैठना या आधा बैठना, जिससे जितना बन पाए। तो ये तो हुआ आयु का संदर्भ। दूसरी बात, पवित्रेण शतायुषा, पवित्रता के साथ, ऊर्जा के साथ, अस्मा भवतु नस्तनो, अस्मा भवतु नस्तनो, हमारे शरीर वज्र की तरह हो जाए ना, ये है बड़ी बात। दोनों हाथ कमर की तरफ से, दाहिने तरफ ऐसे, फिर बाएं हाथ, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहता है, सामने वाले पैर पर ऐसे बैठ। जब आप किसी को भी योग सिखाते हैं तो लगभग 1-2 सप्ताह तो विधि पर उनका विशेष ध्यान दिलाना होता है। यदि विधि पर ध्यान ना दिलाया जाए तो फिर वो करेंगे तो सही, लेकिन उसमें एक रूपता नहीं होगी, उसमें सुंदरता नहीं होगी, उसमें, और जब विधि पूरी ठीक नहीं होगी तो लाभ भी जितना अपेक्षित है उतना नहीं मिल पाएगा। 6 के बाद ये 7वां अभ्यास, दोनों हाथ सामने, और देखो हाथ ऐसे कंधों के समानांतर ऐसे आते हैं, ये तरीका होता है। ये अब इसमें विधि ठीक नहीं है तो फिर गलत अभ्यास हो गए तो कैसे करेंगे? कुछ ऐसे करेंगे, ये ऐसे नहीं है। कैसे है? ऐसे। गलत, ऐसे नहीं है मेरे बापू, देख अभी मैं ये कह रहा था ऐसे करना, ऐसे ऐसे। हाथ कंधों के समानांतर ही आएंगे, हथेलियों का रुख ऐसे ही रहेगा, गर्दन पीछे की ओर झुकेगी, श्वास अंदर करके ऐसे, ये तरीका। चाहे धीरे धीरे कर लें, चाहे तेजी से कर लें। धीरे धीरे किया तो भी ऐसे होगा, तेजी से किया तो भी। सामान्य स्थिति में लौट आए, कम बैक इनटू द नॉर्मल पोजीशन। देखो कोई भी अभ्यास करते हैं, मैं गहराइयों की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं। विधि की बहुत बड़ी भूमिका है, समय की बहुत बड़ी भूमिका है। विधि में बहुत कुछ है जो मैंने संकेत किया, समय की बहुत बड़ी भूमिका है, इसके ऊपर भी मैं और संकेत करूंगा बाद।
एकाग्रता की बहुत बड़ी भूमिका है, निरंतरता की बहुत बड़ी भूमिका है। एक दिन योग करने से लाभ तो होगा, लेकिन पूरा रूपांतरण नहीं होगा। एक दिन पढ़ाई करने से, एक दिन ध्यान करने से, एक दिन कुछ भी करने से, एक दिन दारू पीने से, एक दिन बीड़ी सिगरेट पीने से भी हानि होगी, लेकिन पूरी हानि नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा। लेकिन एक बार भी नहीं पीना होगा। एक बार योग करने से भी लाभ होगा, लेकिन पूरा लाभ नहीं होगा। इसलिए उसको लगातार करना है। माने ये जो चारों शब्द मैंने बोले हैं, इनके पीछे का एक बहुत बड़ा दर्शन है। चलो दोनों हाथ साइड में। अब हाथ ऐसे ऊपर उठाए, नीचे वाला हाथ पहले घुटने के पास, फिर नीचे टखने के पास है। ऊपर वाले हाथ की हथेली करो को नीचे की ओर। कोई भी अभ्यास को जब पहली बार करवाते हैं तो धीरे धीरे कराते हैं। पहले ऐसे धीरे से करवाए। ऊपर वाले हाथ की हथेली करो को नीचे की ओर, नीचे वाला हाथ टखने के पास, पहले से धीरे धीरे किया, फिर वापस आ गए। पहले रुका करें एक स्थिति। अब इसको, ये तो सामान्य गति होगी। ये त्रिकोण आसन है, फिर कोणासन भी होगा, फिर पाद हस्तासन भी होगा। उनको धीरे धीरे करवाएंगे, तेजी से भी करवाएंगे। इसका एक दूसरा स्वरूप होता है, एक पैर को ऐसे साइड में, जैसे बाईं ओर के पैर को ऐसे किया सीधा, सामने वाला पैर ऐसे, उसका पंजा ऐसे सीधा। एक दूसरा इसका ये अभ्यास होता है, क्योंकि ये शारीरिक संतुलन के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए तो ठीक है, वेट आदि घटाने में इसकी बड़ी भूमिका नहीं होती। इसलिए एक एक अभ्यास के दो दो तीन तीन तरह की भी प्रैक्टिस होती है। तो इसमें ऊपर वाले हाथ को ऐसे देखते हैं, नीचे वाला हाथ ऐसे आ गया और उसको ऐसे देख, दोनों हाथों के हथेलियों का रुख सामने, ऐसे, फिर वापस आ गया। इसको प्रारंभ ऐसे किया जाता है। यहाँ से प्रारंभ किया तो एक पैर ऐसे गया, फिर दूसरी तरफ से कहते हैं तो ऐसे गया, ऐसे, और फिर हाथ ऐसे। इसके दोनों हाथों के हथेलियों का रुख ऐसे सामने, ऊपर वाले हाथ को देखते, फिर वापस आ। अब इसको हम नहीं करवाते, विशेष परिस्थितियों में करवा भी देते हैं। त्रिकोणासन के दो अभ्यास हैं। हम जिस अभ्यास को कराते हैं उसमें पैरों में फासला होता है, ऐसे करवाते हैं, पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से, क्योंकि इससे लाभ विशेष होता है। क्या? साइड का जो बढ़ा हुआ एक्सेस फैट है वो मेल्ट हो जाता है और स्ट्रक्चर बैलेंस। प्रातः सायं गुरु का वंदन, प्रातः सायं गुरु का वंदन। परमेश्वर का ध्यान करो, ये तन मन जीवन जिसने दे, उसका सब गुणगान करो, उसका सब गुणगान करो। प्रातः सायं गुरु का वंदन, परमेश्वर का ध्यान करो, ये तन मन जीवन जिसने दे, उसका सब गुणगान करो, प्रभु का सब गुणगान करो। उसकी दिव्य शरण में आके, आत्मसमर्पण भाव जगा के, उसकी दिव्य शरण में आके,
आत्मसमर्पण भाव जगा के। परम पवित्र परम सुखदायक, परम पवित्र परम सुखदायक भक्ति का रस पान करो। प्रातः सायं गुरु का वंदन, प्रातः सायं गुरु का वंदन। परमेश्वर का ध्यान करो, ये तन मन जीवन जिसने दे उसका सब गुणगान करो। पृथ्वी सूरज चांद सितारे सभी बनाए न्यारे न्यारे। जब पीछे की ओर झुकते हैं तो श्वास अंदर, जब आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर। ओ पृथ्वी सूरज चांद सितारे सभी बनाए न्यारे न्यारे। पृथ्वी सूरज चांद सितारे सभी बनाए न्यारे न्यारे। चिंतन और मनन से उसकी, चिंतन और मनन से उसकी ताकत का अनुमान करो। प्रातः सायं गुरु का वंदन, प्रातः सायं गुरु का वंदन। परमेश्वर का ध्यान करो, ये तन मन जीवन जिसने दे उसका ही गुणगान करो, उसका ही गुणगान करो। ऋषियों का पैगाम यही है, चिंतन का परिणाम यही है। ऋषियों का पैगाम यही है, चिंतन का परिणाम यही है। करके भजन प्रभु का निष्दिन हो, करके भजन प्रभु का निष्दिन जीवन का उत्थान करो। प्रातः सायं गुरु का वंदन, प्रातः सायं गुरु का वंदन। परमेश्वर का ध्यान करो, ये तन मन जीवन जिसने दे उसका सब गुणगान करो, उसका ही गुणगान करो। प्रातः सायं गुरु का वंदन, परमेश्वर का ध्यान करो, ये तन मन जीवन जिसने दे उसका ही गुणगान करो, उसका सब गुणगान करो, उसका सब गुणगान करो, उसका ही गुणगान करो, प्रभु का ही गुणगान करो। कीर्तन के साथ योग, संगीतमय योग। अनुलोम विलोम करो। देखो प्रार्थना के साथ करवाते हैं आपको, सबको करना है। सब माँ बहन बेटियां करेंगी, आदत डालिए इसको करने की। ये अद्भुत है, अद्भुत। रोज करना। इसके कितने फायदे हैं? एक तो आपका दिमाग इससे अच्छा रहेगा, सिर दर्द नहीं होगा। दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई है ना, छोटी छोटी बातों से नसें खींचने लगती हैं दिमाग की, फिर सिर दर्द होने लगता है, नींद गायब हो जाती है,
रिलैक्स नहीं रह पाते, अनुलोम विलोम करो। 5 मिनट लगातार करना मेरे साथ साथ, प्रार्थना के साथ कराते हैं। सिर दर्द के लिए रामबाण है, अभी एक बार कर लो जरा। नेगेटिव थॉट्स आएंगे नहीं, गुस्सा आएगा ही नहीं, बुरा विचार आएगा ही नहीं। बुरा विचार नहीं आएगा तो बुरा भाव भी नहीं आएगा, फिर बुरे कर्म भी नहीं होंगे। जीवन अपने आप ही दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाए। तुम जीते जी ही मुक्त हो जाओगे। अनुलोम विलोम करो, सब करेंगे आराम से। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, आराम आराम से। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जहाँ की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। रुको मत बीच में, लगातार करो। आज करते करते अभी भी सिर में दर्द हो रहा है तो करते करते मिट जाएगा। इतना जबरदस्त फायदा होता है इसका। तनाव गायब, ध्यान लग जाएगा अपने आप, समाधि लग जाएगी। भगवान का ध्यान, भगवान की शरणागति में ये प्राणायाम करना। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, गंगा यमुना सरस्वती, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां सब शुद्ध हो जाती है। तन मन बुद्धि चित्त आत्मा अंतःकरण शुद्ध। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। तुम हो समाये हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लो।
पंजाबी गाइए जरा। हम जो रूठे तभी तो मना लोगे तुम। आशा है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। हाँ संभालोगे तुम। हाँ संभालोगे तुम। संभालोगे तुम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय।